Hi students, कैसे हैं आप सभी? I welcome you all to DNA session of today's The Hindu Analysis brought by Tathastu ICS and presented by me, Ruchi Singh. I hope you people are following newspaper properly, and after having seen the previous session, now you have a better understanding of how you should approach newspaper daily, what all the articles you need to pick up from daily newspaper and read, and what all irrelevant information you need to skip. All right, so today let's first start with looking at the newspaper. Few of the articles which you have to read on your own, that also I have today written in the content or the articles to be read. Few of the articles जिसको बहुत detail में पढ़ने की ज़रूरत है for the exam point of view, and for some with some extra information that I have included as we always do. आज अगर आप पेपर में देखेंगे तो you will notice one thing कि आज का जो almost 3 to 4 articles है, starting with the Kerala state government, and then on the editorial page also the articles are mostly around fiscal federalism or center state relation in terms of devolution of the taxes or devolution of the funds from the center to the states. So all these 2-3 articles will club together and read as one, and we'll see some constitutional provisions given in the article with respect to center state financial relation. So let's look at the content which we need to cover today from newspaper. So the first article जो आपको मार्क करने की ज़रूरत है अपने न्यूज़पेपर में, मार्क करिए, Uttarakhand tables UCC bill in assembly, page number 1. And then mark from the syllabus also, जैसे मैंने हमेशा कहा है, I hope after few days I don't need to mention the syllabus. You can yourself relate with the main syllabus, because by then you will be habitual of understanding whatever articles is coming in the newspaper is related to which part of the main syllabus. This is very important practice I have been highlighting from the day one. ठीक है, so keep seeing main syllabus. So this article, if you can see, is related to syllabus GS2 of mains, Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions, and basic structure. Okay? And the second article which you need to underline or pick for the reading is ED conducts raids over Manrega's irregularities across Bengal district. All right, and then third article which you need to cover is Kerala is one of the most financially unhealthy states in the country, as said by the center. Center has said. Look, Kerala state government has come up with statements like the center is not following proper fiscal conduct, and it is the state government of Kerala is devoid of much funds to carry out its functions as the government of the day. So based on that statement made by the Kerala government, center has come up with this statement that it is most financially unhealthy state because of improper use of the funds which has been provided to the state from the central government. So this article we have to cover. The syllabus, you can relate with functions and responsibilities of union and the state, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. So this is very relevant article for us for mains point of view. And then fourth which you need to cover is union government's reins on the financial transfers to state, page number 6, syllabus part GS paper 2, functions and responsibilities, the same as of this. So you can see, third article, fourth article is based on center state fiscal relations, that we will club together and see. The fifth article which you need to mark is the severe erosion of fiscal federalism. Again you can see fiscal federalism, again the article is on center state financial relations, that we will look. And the same syllabus you can refer to GS paper 2 of the mains, and then this is the exact wording where you can relate this article with from the syllabus. And the sixth
article which you need to read is understanding the delimitation exercise. Understanding the delimitation exercise. This is very much in news. Delimitation of the constituencies. Page number 8. We'll understand what is delimitation and what are the issues being faced while bringing out this exercise of delimitation. We'll read directly from the article. And the 7th, last but not least, tax to GDP ratio to hit all-time high of 11.7% of GDP in financial year 2025, page 13. All right, and you can relate with GS paper 3 of mains GS syllabus, government budgeting. So you have to understand what do you mean by tax to GDP ratio, whether tax to GDP ratio should be high or low, and what if it is high, what does it mean, and if it is low, what does it mean. All right, all these, from all these point of view, you have to cover these articles. Few of them will be taking a bit detail with respect to the syllabus of UPSC and exam point of view. So let's begin. The first is Kerala is one of the most financially unhealthy states in the country. Center. So इसमें आपको क्या समझने की जरूरत है? Center state financial relation. अब इसमें समझिए, जो आपको माइंड मैप जो हम करते हैं उसके लिए क्या करने की जरूरत है. सबसे पहले आप ये जानो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को. फ्यू ऑफ द आर्टिकल्स वी विल बी सीइंग. व्हाट डज इट मीन बाय फिस्कल रिलेशन, वो देखेंगे. And then before all these points, it's important that we understand why this news is being covered, what is the context, why we are talking on this. So let's go to the article and read about it. These are all ads, you have to skip, quickly come to. Yeah, as I said, Uttarakhand tables, UCC assembly, this was the first article. We are not going to discuss it today because we have already discussed in detail UCC, the meaning of UCC and constitutional provision related to various Supreme Court judgments related to UCC, how Uttarakhand, there were petitions. And I think 2 or 3 days back only we covered it in detail, that there were petitions which were challenging the state's decision to bring UCC. Why Supreme Court dismissed the petition, and then there was another petition seeking Supreme Court to bring UCC and get it into action, and Supreme Court also declined it, saying that it is a responsibility of the Parliament, not of the judiciary. All these things we covered in very much in detail. Please go back to that session and read about UCC. I have provided content also which is important for exam point of view. We had covered that day in very much detail. So today we are skipping this discussion on UCC, and it's almost exactly the same content which we covered. So let's go to another article which you need to read. ED conducts raids over Manrega's irregularities across Bengal districts. This you have to just go through, give a glance. We are not going to cover it in today's discussion. This is, I just want you to read that, like, these lines. This is the first time the agency has conducted searches in connection with Manrega's irregularities. Funds to the scheme were stopped in December 2021 or irregularities. So these are a bit of information. Just go through it and see that there are practices in various state governments where Manrega funds are being misappropriated and there are irregularities in the Manrega funding. So thoda sa just go through it. There is nothing to discuss in class. So this is the article which we will be covering. Kerala is one of the most financially unhealthy state in the country. What the article says, let's read about it. The line which you need to read is, despite the devolution of substantial resources from central taxes and duties, highest share of post-devolution revenue deficit grant, financial support over and above the Finance Commission's recommendations and transfer of funds under centrally sponsored scheme, any financial stress that Kerala government is facing is purely due to its own financial mismanagement.
So, you know, the government is saying that central government is saying that we have provided much funds to the Kerala state government, but the financial stress which the Kerala government is facing, not because it is receiving less fund or there is scarcity of fund, but the funds received has been misused, misappropriated. So this is, as center said, and further it is saying that the state indulge in reckless borrowing or to finance unproductive expenditure. If the government is borrowing to finance unproductive unproductive expenditure and poor targeting, so what happens when you are borrowing but you, अगर आप उधार मांग करके उसको जाके शॉपिंग में उड़ा देते हैं और ऐसी चीज़ों पे लगा देते हैं जिससे आपका एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो बोरोइंग एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है, उसको पे बैक भी करना पड़ता है। तो एक विशियस साइकिल जो है क्रिएट हो जाती है उधार और बोरोइंग लेने की, स्पेंडिंग करने की, बट देयर इज अ ह्यूज गैप, यू कैन नॉट क्लियर योर डेट्स. So this is why central government is accusing the state government of Kerala that it is the funds are being borrowed and they are not being spent on productive expenditure but rather unproductive expenditure. So, and then further it says that it is poor and poorly targeted subsidies. Subsidies are good, but there are few subsidies which hampers the state governments or the any government's financial health. So subsidies are always not good. If it is poor subsidy, it is going to have a poor financial kind of situation creates on the person or any state government which does the reckless borrowing or to finance the unneeded subsidies. That is what central government is accusing the state government. Increasing state debts as a consequence of high borrowing will reduce availability. If the borrowing is so much and it is not being spent on creating further asset, so what will happen is increase in state debts as consequence of high borrowing will reduce availability of development funds, impoverishment of people and loss of state income. So if it is the state debts is increasing, what will all happen? It says that there will be reduced availability of development funds, डेवलपमेंट के लिए फंड्स रिड्यूस हो जाएंगे, इम्पावरिशमेंट, पीपल विल बिकम फर्दर पुअर, एंड देन देयर बी अ लॉस ऑफ स्टेट income. So all these are the negative side effects of so much borrowing and improper use of the funds. Further, the note is in response to, and actually जो ये नोट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है वो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पांस, स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोट रिलीज किया था उसके उसको रेसिप्रोकेट, उसको आंसर करने के लिए था. तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या नोट था जो ओरिजिनल सूट में फाइल किया गया था? इट सेड दैट द सेंटर फॉर स्टेट ऑफ केरला accused the center for violating the federal structure of the governance and causing severe damage to the economy of a small state with meager resources. The state urged the court to protect the federal system of the governance in which the state has exclusive power to regulate its finances through the preparation and management of its budget and borrowings. Kerala said recent actions like imposing a net borrowing ceiling, same जो ये net borrowing ceiling का point है, जो हम next आर्टिकल पढ़ेंगे एडिटोरियल पेज पे, इसी के बारे में नेट बोरिंग सीलिंग. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉइंट a thing called as net ceiling on the borrowing. We'll understand what is the net borrowing ceiling and how it is hampering the interest of the state government. So this we'll look at in detail in next article. So further it says that the net imposition of net borrowing ceiling in arbitrary manner were calculated to reduce it to state of penury. So the state, when Kerala government brought this note, then center came up with this explanation. That is all about this article. Let's look at some of the constitutional provisions related to center-state financial relations. Please refer Article 256 to 291. Open your Bare Act and read from your Bare Act this Article 256 to 291. This relates to center-state financial relations.
articles spanning from 268 to 293 in part 12 of the constitution deals with the center-state financial relations. To be particular, 268 to 293, but please read from 256 to 291. It is all as well, because it is a little bit detailing about the center-state financial relations. So which part? Part 12 of the Indian constitution. Which article? 268 to 293 deals with center-state financial relations. Because India is a federal country, it adheres to division of powers when it comes to taxation, and it is the responsibility of center to allocate funds to the state. So this is a little bit background of center-state financial relations and the constitutional provisions from article 268 to 293 part 12 of the Indian constitution. Further, schedule 7, जिसमें हमने schedule 7 के बारे में कल परसों भी हमने बात की थी, that it describes the ability of the center and the state to levy taxes. The goods and services tax, a dual structure tax, is a recent example of a financial center-state relationship. So this is a little bit background of center-state financial relations. Let's look at another जो article है, union governments ran on financial transfer to the states. Page 6. Let's go to page 6 and read the article. So what does it say? जो आर्टिकल है कम्प्लीटली वही सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें, हाउ द टैक्स, सम बेसिक मैथ्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, मोर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. द राइटर्स हैज, द ऑथर्स हैज रिटन अबाउट, you know, how what are the status of the sharing of taxes, how the funds are being devolved, and what are the issues like centralization of public expenditure. Then because of all this, there is a scope of anti-federal fiscal policies, anti-federal, hurting the federal structure, federal polity of the country. So this is all it has talked. There is too much data and facts, you know, which you don't need to stress much upon. Just read this statement, first paragraph. Ever since the start of 14th Finance Commission award period, 14th Finance Commission का award period क्या था? 2015 to 2016. Please note it down. The Union government has been reducing financial transfers to state. This is particularly strange given that the 14th Finance Commission recommended devolving 42% of union tax revenues to states, which is a clean 10% point increase over 13th Finance Commission recommendation. ठीक है? So 10% increase है 13th Finance Commission का. So this is 42%. And then 15th Finance Commission के बारे में it is saying that 15th Finance Commission retained this recommendation of 41%, excluding the devolution to Jammu and Kashmir and Ladakh, which were recategorized as union territories. So this is one fact which you need to take away from this. It's saying that it's a bit critical of the kind of you know, financial transfers the union government is practicing to states. It is bit, this article is bit critical about that. It is saying that there is centralization of public expenditure when the financial transfer to states either as tax devolution or grants in a decline on the one hand, or do not increase at least proportionally to increase in gross revenue of the union government on the other. The resultant effect is the availability of larger discretionary funds for the union government to spend. This could affect the equity in distribution of financial resources among state. The union government has two other routes of direct financial transfers to state. So what are the two ways, two routes जो direct financial transfer जो central state को कर सकता है, उसके दो कौन से routes हैं. तो ये कौन से routes इसमें mention है? Centrally sponsored schemes CSS and central sector schemes CSEC schemes. So these are the two ways, two routes through which union government can provide direct financial transfers to states. Alright, so this is about it. In other words, the union government proposes the schemes and state implement them, committing their financial resources as well. Between 2015-16 and 2023-24, the allocation of CSS increased from this, and these are the data you can skip. An important aspect of CSS shared scheme is that states that can afford to commit matching finances from state budgets alone can avail of matching grants. This creates two different effects in terms of interstate equity in public finance. Wealthy states can afford to commit equivalent finances and leverage union finances inwards through implementation of CSS. Less wealthy states will have to commit their borrowed finances
in these CSS. So ये कह रहा है कि जो wealthy states हैं वो तो अपनी जो है जो resources हैं they can use these resources and can take benefit of centrally sponsored scheme. जो वहाँ से फंड्स आ रहे हैं अपने भी फंड्स लगा करके सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में उनके लिए ईजी है. बट जो लेस वेल्दी स्टेट्स हैं उनके लिए बोरोइंग, दे हैव टू बोरो टू कम ऑन पार विद दिस जो भी फंड सेंटर से रिसीव हो रहा है. इट्स सेइंग दैट द लेस वेल्दी जो स्टेट्स उनको बोरो करना पड़ता है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ सेटअप. The less wealthy states will have to commit their borrowed financing in these CSS, thus increasing their own liabilities. Borrow करके अगर finance करना पड़ रहा है CSS को तो इसकी वजह से states की liability बढ़ जाती है. These differential trajectories of the public finance of states accentuate interstate inequality in public finances. The major reason being CSS. So ये जो article है, जो authors हैं, they are saying that जो centrally sponsored schemes है उसकी वजह से इंटरस्टेट इनइक्वालिटी आ रही है पब्लिक फाइनेंस में. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज टू बी हाईलाइटेड. द C6 स्कीम आर फुल्ली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. जो CSS है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें शेयर्ड डिवाइडेड है. सेंटर विल गिव दिस मच फंड एंड स्टेट हैज टू एड टू दिस फंड्स टू रन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. लेकिन जो सेंट्रली जो C6 स्कीम्स हैं ये फुल्ली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से, इन सेक्टर्स वेयर द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल. सो ये कह रहा है कि उस सेक्टर्स में जो C6 स्कीम्स हैं, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, दे आर फुल्ली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट बट कंडीशन अटैच कहाँ पे, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल है. द एलोकेशन ऑफ C6 स्कीम इंक्रीज दिस टू दिस मच इज सेइंग. Thus, it is clear that union government allocates a larger share of finances to C6 scheme. तो CSS स्कीम से ज़्यादा C6 स्कीम में यूनियन गवर्नमेंट फंड्स डिवॉल्व करती है या फंड्स एलोकेट करती है. इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द यूनियन गवर्नमेंट कैन एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद अ मोटिव टू बेनिफिट स्पेसिफिक स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू द C6 स्कीम. तो ये कह रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट को जिस स्टेट को फेवर करना पड़ता है या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फेवर करना चाहता है, C6 स्कीम्स के थ्रू सेंटर उन्हीं को जो है उन्हीं स्कीम्स में उन्हीं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज या स्टेट्स को पैसे प्रोवाइड करती है थ्रू C6 स्कीम में. सो सिंस द C6 स्कीम आर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ओनली 60,000 or 61,000 crore approximately is devolved to states under this scheme in 2023-24. The combined allocation for CSS and CSS scheme in 2023-24 is 19 lakh crore and only 4 lakh crore is devolved to the state. So जो एलोकेशन है वो तो 19.4 लाख का है, लेकिन डिवोल्यूशन कितना हुआ है, सिर्फ 4.2 लाख करोड़ का ही डिवोल्यूशन हुआ है. सो दिस इज अबाउट द डेटा. तो दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ स्कोप फॉर एंटी फेडरल फिस्कल पॉलिसीज. सो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मीन्स एनीथिंग ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट. सो इट सेज दैट this goes against the federal setup, federal fiscal policy. What kind of there is a, because of such misarrangements, because of such favoritism to CSS or CSEC schemes, this has created a situation where there is a scope of federal fiscal policies. The financial transfer through CSS and CSEC schemes are non-statutory transfer. So जो financial transfer है CSS और CSEC स्कीम्स में वो नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर है, स्टैट्यूटरी ट्रांसफर नहीं है. स्टैट्यूटरी मतलब एनीथिंग ब्रॉट बाय द लॉ. सो इट इज नॉट अंडर एनी लीगल ऑब्लिगेशन as they are based on neither any legal provisions nor any formula determined by finance commission. So जो CSS और CSEC schemes हैं उसमें जो funds का devolution है that is not determined by any statutory provisions or any law or legalities brought by or any recommendation given by finance commission. So इस वजह से क्या हो रहा है कि there is there is a mismatch, there is no clear outline that how these funds will be devolved. Because of this there is a tension between center state financial relations, and then that is why it is creating kind of a scope where there are policies which can hurt the federal जो federal फिजिकल रिलेशन है उसको हर्ट कर सकती हैं. सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल. लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए.
Further, the Finance Commission noted that the Union government had argued for the downward revision. For 15th Finance Commission said that Union government had argued for the downward revision of state share in union tax revenue from 42%, and the Commission retained the share at 41%. Law Commission has retained the share at 41%. Citing higher expenditure commitment, the Union government may repeat the argument before the 16th Finance Commission. So much for cooperative federalism. So you have to understand the meaning of cooperative federalism, you have to understand the meaning of fiscal federalism, you have to understand all the articles in the Constitution of India which relates to fiscal relations, cooperative federalism. So please pick your Bear Act, read the articles related to fiscal relation between center and state, and this will be all about your this article and related to fiscal relation between center and state. Let's go to next article. Yeah, a little bit note on fiscal federalism in recent times. आपको कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं जो जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. हाउ विल यू कवर दिस फिस्कल फेडरलिज्म and recent context and recent situations. So please read with me. Center dominance and investment shift. There is a center dominance and investment shift. What we can see in terms of fiscal federalism, center state fiscal relation के terms में, what is the context which is going on and you have to observe. There is a center dominance and investment shifts. Article में भी हमने ये देखा. So please read. The expanded scope of center's activities can lead to a scenario where it encroaches upon states' investment territory. और केरला गवर्नमेंट ने भी यही अपने नोट में हाईलाइट किया है. So this recent example of Kerala government, Kerala and यूनियन गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सेंटर लॉन्च द, और अनदर एग्जाम्पल जो है वो पीएम गति शक्ति एक स्कीम सेंटर ने लॉन्च की थी, स्कीम जिसमें स्टेट्स एंड यूटीज हैड टू प्रिपेयर एंड ऑपरेशनलाइज अ स्टेट मास्टर प्लान इन लाइन विद द नेशनल मास्टर प्लान फॉर सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन. तो पीएम गति शक्ति के अंडर क्या करना था, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एक प्लान प्रिपेयर करना था और ऑपरेशनलाइज करना था. किसके साथ? मास्टर प्लान, जो नेशनल मास्टर प्लान के साथ कंबाइन होकर के ऑपरेट किया जा सके for seamless implementation. However, the flexibility of state in formulating their master plan is curtailed by centralization of planning and implementation of the national master plan, leading to under investment by state. स्टेट्स को पीएम गति शक्ति में बोला कि स्टेट्स को बोला गया कि भाई स्टेट आप सब अपने अपने प्लान लाइए और जो नेशनल प्लान है उसके साथ इंटीग्रेट करके हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी हो गया था. बट प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रलाइजेशन है प्लानिंग में. अगर सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग में तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग प्रपोज करके करें भी क्या कर भी कह सकते हैं. अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाएगा तो बातें तो करवा लेंगे लेकिन सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, उसमें कोई भी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हैं कि अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग है तो फ़ायदा ही क्या है. अपने स्टेट्स अपने मास्टर प्लान लेके आए जब नेशनल प्लान को ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन. इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कम इंसेंटिवाइज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए. दैट इज़ वाई देयर इज अंडर इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट. Consequently, states witness a decline in capital expenditure (capex) on roads and bridges, falling to a meager 0.58% of the gross state domestic product. तो ये प्रॉब्लम है, सेंटर डोमिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स है. नेक्स्ट इज peculiar fiscal competition. there is a kind of, अब केरला गवर्नमेंट वाला जो हमने एग्जांपल अभी पढ़ा, जो केरला स्टेट गवर्नमेंट का इशू चल रहा है, केरला यूनियन गवर्नमेंट का जो अभी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स चल रहा है, उसमें इससे क्लियर एग्जांपल है इसका दैट देयर इज अ फिजिकल काइंड ऑफ कंपटीशन. पिक्यूलियर है, कहते हैं फिजिकल फेडरलिज्म होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, बट इजंट इट अ वायलेशन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म? देयर इज दिस क्वेश्चन arises. So while federal system typically witnesses fiscal competition between region states, India has seen states engaging in competition not only among themselves but also with the center. मतलब typically होता क्या है फेडरल सिस्टम में कि आपस में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कंपटीशन होता है, बट पिक्यूलर कंडीशन ऑफ हमारी जो कंट्री का वो है कि स्टेट्स कॉम्पीट कर रही हैं सेंटर से भी. तो स्टेट यूनियन टेरिटरीज आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, बट देयर इज अ कॉम्पिटिशन विद center also. In a way competition is good, but
If it is healthy competition, fine, but however there is unhealthy competition as well. In this case, this highlights unhealthy competition, which is actually ultimately against the citizens' interest. So the scenario arises due to centers augmented fiscal space, granting it more spending power, while states face limitations in raising non-tax revenue. States पे लिमिटेशन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते हैं, सेंटर्स का जो फिजिकल स्पेस है वो स्टेट से ज़्यादा है. तो दिस इज द रीजन. फर्दरमोर स्पेंडिंग हैज बीन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. दैट इज जो स्पेंडिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड 3 लार्जेस्ट स्टेट में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. सो अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय 16 स्टेट्स बिटवीन 21 and 22. तो कह रहे कि जो हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर है 16 स्टेट्स ने किया है, उसके बराबर सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जो स्पेंडिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. तो क्या यही 3 स्टेट हैं जहाँ पे फंडिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है? व्हाट अबाउट द अदर स्टेट? जस्ट बिकॉज देयर पॉपुलेशन एंड देयर अपीजमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू गेन काइंड ऑफ, इफ वी से, वोट्स, तो क्या दूसरे स्टेट्स को नेग्लेक्ट करना is fine? So this is one critical point of view. The third point है inefficiencies from parallel policies. Federal aberrations मतलब some points of friction between center and states have resulted in the emergence of a parallel policies. ये parallel policies क्या है? जैसे कि the national pension system heralded a shift from defined benefit scheme to a defined contribution scheme. ठीक है. So while most states initially adopted the NPS, some are reverting the old pension scheme due to perceived fiscal implications. The lack of trust within federal system drives states to duplicate policies, leading to inefficiencies. Duplication of policy है, parallel policies exist कर रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से long term fiscal repercussions on the economy देखी जा रही है. So these are the 3 conditions जो अभी चल रही हैं. एंड देन नेक्स्ट आर्टिकल जो हम कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, पेज नंबर 8. लेट्स गो टू पेज नंबर 8 एंड रीड फ्रॉम द आर्टिकल. अंडरस्टैंडिंग द डिलिमिटेशन बहुत अच्छा आर्टिकल है. डिलिमिटेशन, और पहले भी हमने डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पहले सेशंस में हमने पढ़ा है. तो इसमें एक क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन इस जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है. मुझे लगता है कि डायरेक्टली यूपीएससी भी इट मिमिक्स द काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क. तो व्हाट डज डिलिमिटेशन मीन? जस्ट रीड विथ मी. व्हाट डज डिलिमिटेशन मीन एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस व्हिच डील विद इट? So that is how you also deconstruct whatever article you read from newspaper. ठीक है, जैसे कि इसीलिए देखो, ये जो अगर आप कहते हैं कि रेगुलर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, जब अल्टीमेटली बहुत सारे सोर्सेज हैं जो न्यूज़पेपर का एक कंपाइलेशन के फॉर्म में मंथली कहते हैं मैगजीन आ रही हैं. तो जब हमारे पास मंथली मैगजीन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ अवेलेबल है, तो वाई वी शुड रीड न्यूज़पेपर? रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्प्स यू टू डेवलप योर ओन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, कहते हैं ना कि आई मीन इफ़ यू कैन समराइज, इफ़ यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग from you read from newspaper in your own words, that is the best way to fetch good marks in mains. तो इसलिए न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना ज़रूरी है. न्यूज़पेपर पढ़ने से आप ये समझते हैं कि जो राइटर्स होते हैं वो किसी भी एक टॉपिक पर जब लिखते हैं तो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है. जब वो आप डीकंस्ट्रक्ट और अंडरस्टैंड करना, समझना शुरू कर देते हैं तो आपके 3-4 फायदे होते हैं. एक तो आर्टिकुलेशन आपकी बेहतर होती है, मेंस एग्जाम के लिए वेरी मच रिक्वायर्ड. इंटरव्यू में भी जब क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं ओपिनियन बेस्ड, जिसमें आपको बताना होता है बहुत सारा ओपिनियंस एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट योर ओपिनियन, यू हैव टू प्रोवाइड एक्सपर्ट्स का ओपिनियन. तो ऐसे जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको ओपिनियंस बहुत सारी फॉर्म करने में ईजी हो जाता है. एंड एस्से में भी जो डिबेटेड एस्से को जब आप डिबेटेड फॉर्म में लिखते हो तो आपका एस्से भी जो आपका आर्टिकुलेशन होता है वो बेहतर होता है. इसलिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, जिससे जब आपको कोई भी, अगर आप कोई मंथली मैगजीन का रेफरेंस ले रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ,
आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका जो मंथली मैगजीन वट एवर सोर्स यूर कवरिंग फॉर मंथली कंपाइलेशन, तो उससे क्या होता है, यू विल बी ईजी, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट मंथली मैगजीन। और ना अगर आप न्यूज़पेपर स्किप करेंगे तो आपको बाद में वो इतना टिडियस टास्क हो जाता है, इतना बोरिंग टास्क हो जाता है कि आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। इतना बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, just reading that bulk of information will not help you retain the information. But if you're reading newspaper daily, तो उससे क्या होगा, आप को रिलेट कर पाएंगे, आपके दिमाग में चीज़ें रन करेंगे, आर्टिकुलेशन आपका बेहतर होगा, ओपिनियन फॉर्म करने में बेहतर होगा, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज डिलिमिटेशन मीन्स एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस व्हिच डील विद इट, why were the seats frozen as per the 1971 census, will the fresh exercise go against federal principle? So आज के आर्टिकल में फेडरल प्रिंसिपल, सेंटर स्टेट रिलेशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, यही सब ज़्यादा कवर हुआ है। गिविंग एन एडवांटेज टू सेंटर स्टेट सर्टेन स्टेट्स ओवर अदर्स। सो आज आप क्या करेंगे, अपनी कोई भी पॉलिटी की बुक आप पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, बीट लक्ष्मीकांत, बीट डी बासु, आज का जो पेपर है, आज का पेपर फटाफट कवर करने के बाद गो टू वट एवर बुक, वट एवर सोर्सेज यू आर कवरिंग फॉर पॉलिटी, बीट डी बासु, बीट लक्ष्मीकांत, आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को पूरा रिवाइज कर लीजिए। न्यूज़ को अपने बेसिक्स, अपने कन्वेंशनल जो पार्ट ऑफ द मेन सिलेबस है उससे रिलेट करके पढ़िए। इसी लॉट ऑफ पीपल से दैट इज 70% करंट अफेयर्स, 30% conventional part, means I say it is 70% the conventional part, a static part combined with 30% of the current affairs. तो अगर आपका कन्वेंशनल स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो यू हैव टू, इफ यू हैव टू पुट द कॉन्टेक्स्ट, जो भी उससे टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है, जैसे अभी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हमने पढ़ा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, तो आप इजीली इस करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन को उसके साथ कंबाइन करके आप एग्जाम्पल्स के साथ अपना आंसर पुट फोर्थ करेंगे, दैट विल help you to fetch better marks. So today one of the homework, one of the tasks for you is that whatever book or whatever sources you are referring for your polity subject, please read center state financial relations, center state relations पूरा overall, cooperative federalism, financial center state financial relations, constitutional provisions, प्लीज़ उसको पूरा आप पढ़िए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद फिर से आज का न्यूज़पेपर के बारे में अगर आप सोचेंगे, रिवाइज करेंगे, तो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच योर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द पॉलिटी कवर हो गया आज के ही न्यूज़पेपर से, और बहुत सारा एग्जाम्पल आप वहाँ से दे सकते हैं। सो प्लीज़ कीप रीडिंग एनसीईआरटीज, योर स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छे इसको पढ़ते रहिए, अपना स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से मजबूत करते रहिए, और जो भी करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से सराउंडिंग आ रहा है न्यूज़ में, आप जस्ट उसको उसमें फिल इन करते जाइए, एंड दैट इज ऑल which is going to help you to fetch good marks, be it prelims or in mains, and fare really well in your mock, in your final stage of the examination, that is interview, ठीक है। So let's read this article. What is delimitation? यहीं से आपको मीनिंग मिल जाएगा। Delimitation means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state. हर स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जाती हैं, तो बोल रहा है कि डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन से नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की फिक्स कर दी जाती हैं, दिस इज डिलिमिटेशन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए कि क्या डिलिमिटेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर जो है कंडक्ट किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं इस आंसर के लिए। फॉर द लोकसभा किसके किसके लिए, ये सिर्फ जो डिलिमिटेशन होती है वो सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए है। तो एक बार फिर से पढ़िए, डिलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ साथ आप एक चीज़ और अपने स्टैटिक सोर्स से कवर कर लीजिएगा पॉलिटी के, वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस भी आप कवर कर ले, उसमें डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेना इस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिलिमिटेशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब भी आपको ये टॉपिक पढ़िए प्लीज मेक श्योर आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते जा रहे हैं अलॉन्ग विद सीइंग मेन सिलेबस एवरी डे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन। आगे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। सो सिर्फ सीट्स और बाउंड्रीज का फिक्सिंग ही डिलिमिटेशन नहीं है, बट इसके साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटीज डिलिमिटेशन में कैरी की जाती है, दैट इज डिटरमाइनिंग द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर SCs एंड STs इन दीज
हाउसेज, मतलब लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स फिक्स होनी है SC/ST के लिए, वो भी डिलिमिटेशन के थ्रू एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 82 and 170 of the Constitution provide that number of seats in Lok Sabha and legislative assemblies as well as its division into territorial constituencies shall be readjusted after each census। तो कब कब सेंसस हुआ था ये भी पता होने की जरूरत है, और जो अभी का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है वो किस सेंसस के बेस पे है ये समझने की जरूरत है। और आगे इसमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि जो 1971 सेंसस हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या ऑब्जर्व हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रैक्टिस है, क्या देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है डिलिमिटेशन में उसका क्या कोई इंटरनेशनल एग्जांपल है जिसको हम यूज़ करके इस सोल्यूशन पे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल में कवर्ड है। आगे this delimitation process performed by delimitation commission, so who performs the delimitation process? delimitation commission है, that is set up under an act of parliament। तो delimitation commission क्या है? there is an act of parliament, उसके अंदर delimitation commission set up की जाती है that conducts the process of delimitation। such an exercise was carried out after 1951, 1961, 1971 census। ठीक है, so these are the 3 years। What is the constitutional requirement? Democracy means rule of government by the people। It follows that the government is elected by majority with the broad principle of one citizen, one vote, one value। एक citizen, उसका एक वोट होगा, उसकी one unit of value होगी। This is the principle of democracy, which says that is the rule or the government by the people। And the government is elected by the majority with the broad principle of one citizen, one vote and one value। ठीक है, जो आगे पूरा नो नीड टू रीड। अब बोल रहा है कि इशू क्या है, इशू क्या है डिलिमिटेशन प्रोसेस जो कैरी हो रहा है उसमें इशू क्या आ रहा है? द नंबर ऑफ सीट्स वर फ्रोजन बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस इन ऑर्डर टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। मतलब 1971 के सेंसस के हिसाब से सीट जो है फ्रोज कर दी गई थी तो डिलिमिटेशन प्रोसेस के अंडर। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट्स रिजर्व की जाती हैं ईच स्टेट से। तो वो कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेकिन 1971 के बाद देयर वाज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फर्दर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? दैट हैपेंड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग लास्ट 5 decades। लास्ट 5 decades में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ एंड हैज़ बीन अनइवन विद सम स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अगर बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ बीन हाईएस्ट फ्रॉम दी स्टेट्स। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की जा रही हैं, बाउंड्री रिजर्व की जा रही कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और आप कह रहे हो कि जो है इसको पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर भी है। लेकिन जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो ये तो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से उनको सीट्स भी ज़्यादा मिल रही हैं लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो इज इट नॉट गोइंग अगेंस्ट द टारगेट ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन? तो जिन स्टेट्स ने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है वो तो लूजिंग साइड पे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन विच दिस ऑथर इज आस्किंग बाय गिविंग दिस फैक्ट। तो दैट आर 2 ऑप्शन दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। तो यस, फर्दर इट्स सेइंग दैट having a greater increase than states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. There are 2 options that are being discussed in public domain with respect to the revised delimitation exercise based on projected population of various states at 2026. The first is to continue with existing 543 seats and their distribution among various states। देखो ये टेबल देखिए आप, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ सीट्स का, Table 1, if the number of seats is retained at 543 and reapportioned among states based on projected population 2026। तो अभी देखिए नंबर ऑफ सीट्स एट प्रेजेंट यूपी में 80, बिहार 40, राजस्थान 25, MP 29, तमिलनाडु 39 एंड नंबर ऑफ सीट्स प्रोजेक्टेड तो बढ़ रही है, यूपी में बढ़ रही है 91 हो रहा है, बिहार का भी बढ़ रहा है 50, राजस्थान का भी 25 से 31 बढ़ रहा है, MP भी बढ़ रहा है। सो तमिलनाडु का देखो आप नंबर ऑफ सीट्स प्रोजेक्टेड, तमिलनाडु की घट रही है, आंध्र प्रदेश की भी डिक्रीज हो रही है, केरला की भी डिक्रीज है। यू कैन सी जिन स्टेट्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है उनका जो प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जो स्टेट्स हैं जिनकी जो सक्सेसफुली कंट्रोल किए हैं पॉपुलेशन को उनके लिए सीट्स टू बी एलोकेटेड जो प्रोजेक्टेड है वो लॉस में है। देखिए माइनस जितने भी तमिलनाडु के बाद जो भी स्टेट्स हैं
all are on the last side. तो इससे फिर how will the states will be incentivized to decrease or to control the population? So if the number of seats is increased to 848 based on the projected population 2026, तो बोल रहे कि अगर 848 कर दी जाए, अगर 553 ही रहने दें, जो अभी सीट्स एलोकेटेड है 543 इन लोकसभा, अगर उसको रिटेन किया जाए और रीअपॉर्शन किया जाए अमंग वेरियस स्टेट्स, तो ये कंडीशन होगा। बोल रहे कि अगर सीट्स को 848 कर दिया जाए, जो पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड है 2026 में, उसके हिसाब से क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा नेट गेन किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा नेट गेन यूपी को है, बिहार को है, राजस्थान, एमपी, इन तीनों का है, ठीक है। और अब देखो आप सबसे ज़्यादा, और जो अदर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका है, ये सब देयर नेट गेन इज नॉट दैट मच। सो ये एक तरीके से इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ फ्रीजिंग सीट्स एज पर 1971 स्टेट सेंसस, विद द स्टेट दैट हैज बीन बेटर एट कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन लूजिंग आउट ऑन देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। आप समझ रहे हो? तो यही आर्टिकल वही कह रहा है कि भाई ये तो फिलोसफी ऑफ फ्रीजिंग स्टेट्स के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि कैरी किया गया था 1971 सेंसस के हिसाब से, विद स्टेट दैट हैज बीन बेटर एट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन लूजिंग आउट ऑन देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। मतलब बेचारे एक तो अच्छा काम भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं, और बट जब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, दे आर एट लूजिंग साइड। सो इजंट इट अ बिग क्वेश्चन, इजंट इट अ सम लूप होल? तो बोल रहा है कि देन ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस कोई अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दो एग्जाम्पल दिया है राइटर ने, फेडरेशंस लाइक यूएस का और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें there are a setup which is being carried out and successfully dealing with such issues. तो ये दो एग्जाम्पल्स आप साइड कर सकते हैं। इफ इट इज अबाउट डिलिमिटेशन, द प्रॉब्लम्स ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, एंड देन टू एग्जाम्पल्स इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, उसका दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो फिर आगे ऑथर जो सजेस्ट कर रहा है सोल्यूशन का, वो क्या है? द इशू अराइजेस बिकॉज डेमोक्रेटिक एंड फेडरल प्रिंसिपल सीम्स टू बी एट लॉगरहेड। जो डेमोक्रेटिक एंड फेडरल प्रिंसिपल हैं, वो एक दूसरे के जो है एकदम सामने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज एन एज। सो हाउएवर दे कैन बी हार्मोनियसली रिकनसाइल्ड बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ। फेडरल और डेमोक्रेटिक सेटअप को, दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस अगर दें तो ईजिली इसका सोल्यूशन पाया जा सकता है। द मेन वर्क ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि अगर हम जो है फेडरल प्रिंसिपल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को दोनों को अलाइन कर दें, तो सोल्यूशन हम पा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होता है, अगर आप दोनों ही अपने अपने डोमेन में अपने अपने तरीके से काम करें, तो अल्टीमेटली जो हमारा एम क्या है, दैट इज राइट कंडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फेडरल प्रिंसिपल और एग्जीक्यूशन ऑफ सच सेटअप। तो उसमें क्या है, जो जिसके जिसके रिस्पेक्टिव रोल्स हैं वो उसको अच्छे से परफॉर्म करें, तो सोल्यूशन कैन बी ब्रॉड। वो क्या है? द मेन वर्क ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट मैटर्स लाइक डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, टैक्सेशन एक्सेट्रा, and hold the central government accountable. Majority of scheme of central government are implemented only by the state governments, ठीक है। तो जो majority of the implementation है central government schemes का, वो तो state government कर रही है। MPs का काम है legislate करना on various matters of union list और central government को accountable ठहराना है। state governments का काम है implement करना बहुत सारे union government की schemes को। तो hence the number of MPs in लोकसभा में be capped at present number of 553। तो ये वे फॉरवर्ड, ये सोल्यूशन है। तो आप भी नोट कर सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड ये है कि ये अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, आप ही एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से कैच कर सकते हैं कि 543 जो सीट्स एलोकेटेड है उसको कैरी कर सकते हैं, सेम रिटेन कर सकते हैं, और आगे विच वुड इंश्योर नो डिस्ट्रप्शन इन द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। एक तो 543 रखिए, जितनी अभी है उसको रिटेन कर लें, उसकी वजह से जो अभी डिस्ट्रप्शंस हैं रिप्रेजेंटेशन और अलग अलग स्टेट में, वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। दिस विल मेंटेन अप होल्ड द फेडरल प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ एमएलएज इन ईच स्टेट में भी इंक्रीज। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जो सीट्स हैं लोकसभा में 543, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स इन लोकसभा 543, उसको रिटेन करते हैं, लेकिन एमएलएज को बढ़ा देते हैं। तो कह रहा है कि दिस विल मेंटेन एंड अपहोल्ड द फेडरल प्रिंसिपल। इस जो ये 543 को रिटेन करना है, उससे फेडरल प्रिंसिपल मेंटेन हो जाएगा, फेडरल प्रिंसिपल जो है वो अपहोल्ड एंड मेंटेन होगा। दूसरा क्या कर सकता है कि एमएलए इन ईच स्टेट में बी इंक्रीज इन लाइन विद करंट पॉपुलेशन, जो विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स। राज्यसभा के सीट में
जो राज्यसभा सीट्स हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स इन राज्यसभा, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, एमपीज के नंबर को चेंज नहीं करना है, एमएलएज बढ़ा देने हैं। वो बोल रहा है इससे क्या होगा, और जो वो प्रोपोर्शन होगा करेंट पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, तो इससे क्या होगा, टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशनल रिक्वायरमेंट। तो दो प्रॉब्लम बताया था कि फेडरल प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो फेडरल प्रिंसिपल का जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसका सोल्यूशन जो इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया है, मेंशन किया, वो कहा कि 543 सीट को रिटेन करिए। एमपीज का काम क्या होता है, टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ब्रिंग सम लेजिस्लेशन ऑन वेरियस सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट जो है उसमें, तो ये काम उनका इजली ये अच्छे से दे विल बी एबल टू कैरी आउट, ठीक है। तो 543 उसको रखते हैं। एमएलएस का नंबर, क्योंकि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन एमएलएस का काम होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है, तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ एमएलएस जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम भी बेटर हो जाएगी और इससे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है दैट कैन बी फुलफिल्ड। सो दिस इज द टू solutions which has been cited by the writer. Last में, however, the most important reform for strengthening democracy is to empower the local bodies. सबसे अच्छा तो ये तरीका है कि ग्रास रूट लेवल पे काम करिए टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरल पॉलिटी, जो फेडरल प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, उसको इंश्योर करने के लिए बेस्ट तरीके का आप ग्रास रूट लेवल से सोल्यूशन ढूंढिए। और सोल्यूशन क्या है, इट्स सेइंग दैट हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इज टू एम्पावर द लोकल बॉडीज ऑफ पंचायत। तो पूरा जो सवाल है वो सवाल ही यही है ना, टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक एंड फेडरल प्रिंसिपल। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पंचायत को एम्पावर करिए, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को एम्पावर करिए। तो इज टू एम्पावर द लोकल बॉडीज एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हु एंगेज विद द सिटीजंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू दीज बॉडीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट ग्रास लेवल। तो आपने सोल्यूशन भी बता दिया, वे फॉरवर्ड भी बता दिया। सच एन एनरिचिंग आर्टिकल। अगर आप अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में ना ही सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जो रीसेंट इशू चल रहा होता है उसके बारे में ऑथर राइटर्स मेंशन करते हैं, बल्कि साथ साथ में जो आपका बेसिक्स है कि डिलिमिटेशन क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है, फेडरल पॉलिटी क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, इन सब के बारे में भी राइटर मेंशन करता है। तो आप एक साथ जब आप पेपर पढ़ते हो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, द कॉन्टेक्स्ट, रीसेंट इन्फॉर्मेशन, रीसेंट न्यूज़। तो सोचिए हाउ मच हेल्प यू आर गिविंग टू योर सेल्फ बाई कवरिंग न्यूज़पेपर डेली रिलीजियसली विदाउट एनी स्किप। और उसके साथ साथ आप थोड़ा कंटेंट रिवाइज करिए अपने बुक से। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोर्स कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये भी सोर्स पढ़ लिया, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी पढ़ लिया। यू डोंट नीड टू वांडर सो मच, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई एक चैनल तथास्तु एसेस ब्रिंग्स यू एवरीडे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप वहाँ से एनालिसिस देखिए। कुछ कंटेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू पीपीटीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है आंसर लिखने में, आप वो रिवाइज करिए। एट द एंड ऑफ द मंथ कोई भी एक सोर्स जो है जो पूरे मंथ न्यूज़ रन कर रही थी वहाँ से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से तो आप उसको मेंस के सिलेबस से भी देखिए, रिलेट करिए, जो कि मैं पहले दिन से कह रही हूँ, रिलेट एवरी आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर विद योर मेन सिलेबस। और तुरंत उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद गो बैक टू योर दैट वट एवर सोर्स योर रिफरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको रिवाइज कर लिए। तो आज मेजर जो न्यूज़पेपर का वेरियस आर्टिकल्स थे वो पॉलिटी पे थे, और पॉलिटी स्पेशली किसमें, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन सब का मतलब है। तो एक बार वो आज जा करके उस बुक से, कोई भी बुक से आप अपना पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए, दैट विल बी डन, ठीक है। सो यूल हैव सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे कि आपने पॉलिटी भी रिवाइज कर लिया, न्यूज़पेपर भी रिवाइज कर लिया, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक पे बेस पे आए, you'll be able to handle them well. Okay, so this is it for today. All the best, study well, see you tomorrow with the Hindu analysis of the particular day. All the best, bye.